بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی گاؤں میں کسان رہتا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کھیت میں کام کرتا اور مشکل سے اتنا کما پاتا کہ 2 وقت کا کھانا کھا سکے۔ وہ خود بھی بہت سیدھا سادہ تھا، مگر اس کو جو بیوی ملی وہ حد درجہ بے وقوف تھی۔ ان کی شادی کو کچھ عرصہ زیادہ نہیں گزرا تھا۔ ایک دن صبح سویرے جب کسان کھیتوں پر جانے کو تیار ہوا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ آج کھیت میں سارا دن ہل چلانا پڑے گا، جس سے بہت تھکاوٹ ہو جائے گی اور بھوک بھی بہت لگے گی، اس لیے تم میری واپسی تک اچھا اور لذیذ کھانا بنا کر رکھنا، اور ہاں ساتھ ہی 1 گلاس سرکہ بھی، جو میں پچھلے سال خرید کر لایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کام پر چلا گیا۔ جب کسان کی واپسی کا وقت قریب آیا تو بیوی نے کھانا تیار کرنا شروع کیا۔ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے آگ پر بھوننا شروع کیا۔ جب وہ پکنے کے قریب ہوا اور اس کی خوشبو آنے لگی تو اس نے سوچا کہ کھانا تو بس چند لمحوں میں تیار ہے، اب میں کوٹھلی میں جاؤں اور وہاں ڈرم سے سرکہ نکال لوں۔ یہ سوچ کر اس نے گوشت کو وہیں چھوڑا اور خود ایک جگ لے کر کمرے میں چلی گئی اور سرکہ کے ڈرم کی ٹوٹی کھول کر جگ اس کے نیچے رکھ دیا۔ اس کو بڑھتا ہوا دیکھنے لگی۔ اچانک اس کو یاد آیا کہ کتا تو باہر کھلا گھوم رہا ہے، کہیں وہ گوشت ہی نہ کھا جائے۔ یہ سوچتے ہی وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکلی اور باورچی خانے کی طرف لپکی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا خدشہ درست تھا، گوشت کا ٹکڑا واقعی کتے کے منہ میں تھا اور باہر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ وہ کتے کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی تو وہ جنگل کی طرف دوڑا۔ کسان کی بیوی بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی، مگر کتے کی رفتار اس سے زیادہ تھی۔ وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر جنگل میں چلا گیا۔ خیر، تھک ہار کر وہ مایوس، نا امید اور افسردہ ہو کر گھر واپس آ گئی۔ اس قدر بھاگ دوڑ سے وہ بری طرح تھک چکی تھی، اس لیے کچھ دیر چارپائی پر لیٹ کر اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ اس دوران سرکے کے ڈرم کی ٹوٹی کھلی رہی اور جگ بڑھتا رہا۔ جگ پوری طرح سے بھر گیا تو سرکہ اس کے کنارے سے اس وقت تک باہر گرتا رہا جب تک ڈرم پوری طرح سے خالی نہیں ہو گیا۔ کچھ دیر بعد کسان کی بیوی کو سرکے کے ڈرم کا خیال آیا تو وہ ایک دم اٹھی اور کوٹھلی کی طرف بھاگی، مگر اس وقت تک ڈرم پوری طرح سے خالی ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر پریشان سی ہو گئی کہ اب کیا ہوگا۔ اب یہ سب شوہر کو پتہ چلے گا تو بہت ناراض ہوگا۔ پریشانی کے عالم میں وہ وہاں کھڑی سوچتی رہی کہ اب کیا کریں۔ اچانک اس کی نظر آٹے کے ایک بہت بڑی بوری پر پڑی جو اس کا شوہر چند دن پہلے ہی چکی سے خرید کر لایا تھا۔ یہ بوری دیکھتے ہی اس کے سیدھے سادے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ اگر یہ آٹا فرش پر بکھیر دے تو یہ سارا سرکہ جذب کر لے گا اور فرش اچھی طرح سے صاف ہو جائے گا۔ اس نے اپنے آپ کو شاباش دی اور بوری کھول کر آٹا فرش پر بکھیرنے لگی۔ اس دوران اس کا پاؤں سرکے کے بھرے اس جگ سے ٹکرایا جو ڈرم کے نیچے پڑا تھا۔ جگ بھی الٹ گیا اور وہ مزید پریشان ہو گئی اور اس نے باقی کا سارا آٹا بھی فرش پر بکھیر دیا اور سوچنے لگی کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کسان گھر لوٹا تو اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے آتے ہی پوچھا کہ آج کھانے میں کیا پکایا ہے۔ بیوی منہ بسور کر بتانے لگی کہ میں نے آگ پر تمہارے لیے مزیدار گوشت بونا تھا، مگر کتا لے کر بھاگ گیا۔ جب میں اس کو مارنے بھاگی تو سارا سرکہ بہہ گیا۔ اب میں نے آٹے کی مدد سے کمرے کا سارا فرش صاف کر دیا ہے اور اب وہ کمرہ بہت صاف ستھرا نظر آ رہا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر کسان اپنا سر پیٹنے لگا اور پریشان ہو کر کہنے لگا، او بے وقوف عورت، تم نے یہ سب کیا کر دیا؟ تم نے گوشت کو چولہے پر کیوں چھوڑا تھا اور سرکے کے ڈرم کی ٹوٹی کو بھی کھلا چھوڑ دیا؟ چلو وہ تو ہوا، تم نے تو سارے آٹے کا بھی ستیہ ناش کر دیا۔ اس کی بات سن کر بیوی بھی تیز لہجے میں بولی، اب میں کیا کروں؟ یہ سب کچھ تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ کسان جانتا تھا کہ اس کی بیوی کم عقل ہے، لہذا اس کے ساتھ جھگڑا مناسب نہیں۔ اس نے سوچا کہ مجھے خود ہی اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ چپ ہو گیا۔
इस दिन इन्होंने आलू उबाल कर खाए और पेट भरा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और कोई खासा वाकया पेश न आया। किसान भी अब खासा मोहतात हो गया था और बाहर जाने से पहले सब कुछ अपनी बीवी को समझाकर हदायत देकर जाता। एक दिन किसान ने अपने खेत के एक तरफ उगा हुआ पुराना दरख्त काटा तो जड़ में से इसे कुछ सोने के सिक्के मिले। वो खुश था कि जरूरत के वक्त वो इनको इस्तेमाल कर लेगा और कोई परेशानी नहीं होगी। इसने सोचा कि सोने के इन सिक्कों को किसी जगह छुपा कर रख दिया जाए, मगर इसको अपनी बीवी की तरफ से भी खतरा था कि कहीं वो इनका राज न खोल दे। ये सोचकर बीवी से कहा कि देखो, मेरे पास पीले रंग के कुछ बटन हैं, मैं इनको एक डिब्बे में डालकर जमीन में दबा रहा हूं। तुम ना तो इनके करीब जाओगी और ना इनको देखोगी। बीवी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूंगी। मैं ना इनको वहां से निकालूंगी और ना इनको कभी देखूंगी। बीवी ने यकीन दिलाया। कुछ रोज बाद जब किसान खेतों पर गया तो गली में एक फेरी वाला आया। इसके साथ एक मददगार भी था। वो गधों पर मट्टी से बने खूबसूरत नक्शो निगार के बर्तन बेच रहे थे। इनकी आवाज सुनकर किसान की बीवी ने गली में झांका तो ये बर्तन देखकर इसका दिल ललचा गया। ये देखकर फेरी वाला पूछने लगा, क्या तुम ये बर्तन खरीदना चाहती हो? इसने कहा, हाँ, मगर मेरे पास इस वक्त रकम नहीं है। फिर कुछ सोचकर बोली, क्या तुम इन बर्तनों के बदले पीले बटन ले लोगे? फेरी वाला इसकी ये बात सुनकर हैरान रह गया और पूछने लगा, कैसे पीले बटन? क्या तुम मुझे वो बटन दिखा सकती हो? किसान की बीवी ने कहा कि वो पीले बटन मेरे शोहर ने एक डिब्बे में डालकर सहन में दबा दिए हैं, मगर इसने मुझे मना किया है कि मैं इनको हाथ न लगाऊं, इसलिए तुम खुद ही इनको वहां से निकाल कर देख लो। इसकी बात सुनकर फेरी वाला हैरान रह गया और फौरन सहन में जाकर वो जगह खोदने लगा जहां बीवी ने निशानदेही की थी। डिब्बे के अंदर जब इसने सोने के सिक्के देखे तो बाशें खिल उठी। सारे सिक्के समेटकर जेब में डाले और इसके बदले किसान की बीवी को अपने सारे मिट्टी के बर्तन दे दिए और फौरन अपने साथी के साथ वहां से 9-11 हो गया। वो समझ गया कि ये औरत आला दर्जे की अहमक है जिसे पीले बटनों और सोने के सिक्कों का फर्क भी मालूम नहीं। किसान की बीवी ये सारे बर्तन हासिल करके बहुत खुश थी। वो समझ रही थी कि इसने फेरी वाले को लूट लिया है और चंद पीले बटनों के बदले इतने सारे बर्तन खरीद लिए हैं। खुशी खुशी इसने वो सारे बर्तन घर में इधर उधर सजा दिए। थोड़ी देर बाद जब किसान दोपहर का खाना खाने के लिए आया तो घर में इतने सारे बर्तन रखे हुए देखकर चौंक गया और हैरत से पूछा, अरे ये सब बर्तन कहां से आए? बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो कितने खूबसूरत बर्तन हैं, ये सब मैं तुम्हारे इन फजूल बर्तनों के बदले खरीदे हैं। किसान परेशान होकर चिल्ला उठा, जब मैंने तुम्हें मना किया था कि इन्हें हाथ नहीं लगाना तो फिर तुमने इन्हें वहां से क्यों निकाला? बीवी ने कहा, मैंने इन्हें वहां से नहीं निकाला, मैंने तुम्हारी पूरी बात मानी है। तुमने मुझे इनको छूने से मना किया था, इसलिए मैंने इन्हें हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ जगह बताई तो फेरी वाले ने खुद ही निकाल लिए। बीवी ने पूरी वजाहत दी। किसान ने कहा, ओ बेवकूफ औरत, तुमने वो जगह इसे बताई क्यों? बीवी ने मासूम सा मुंह बनाकर कहा कि तुमने मुझे इस बात से मना नहीं किया था। किसान अपना सर पीटने और दीवार से टकराने लगा। अरे बेवकूफ, वो सारे पीले बटन सोने के सिक्के थे, तुमने क्या कर दिया? बीवी मुंह बनाकर बोली, ये तुम्हें पहले बताना चाहिए था, अब ये तुम्हारी गलती है। किसान कुछ देर गुस्से में चिल्लाता रहा और इस दौरान बीवी खड़ी हुई बस सुनती रही। फिर शोहर से कहा कि मेरा ख्याल है हम वो सोने के सिक्के अब भी वापस ले सकते हैं। वो दोनों अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, आओ इनके पीछे चलते हैं। हम कोशिश तो कर सकते हैं, मगर अपने साथ कुछ लड्डू जरूर ले लेना ताकि अगर रास्ते में भूख लगे तो वो हम खा लें। बीवी ने एक टोकरी में 2 लड्डू रख लिए और दोनों घर से निकलकर इस तरफ चल पड़े जिस तरफ फेरी वाले गए थे। वो रास्ता जंगल की तरफ जाता था। किसान
तेजी से चल रहा था, मगर इसकी बीवी की रफ्तार बहुत कम थी, इसलिए वो बार बार पीछे रह जाती थी। किसान ने तेज चलने का इशारा किया, मगर इसने सोचा कि अगर पीछे रह भी जाऊं तो कोई मसला नहीं, इसलिए जब वो घर वापस जाने के लिए मुड़ेंगे तो मुझे शोहर की निस्बत कम फासला तय करना पड़ेगा। इसी तरह चलते चलते बीवी शोहर से काफी पीछे रह गई। सामने एक छोटी सी पहाड़ी थी। जब वो इस पर चढ़ने लगी तो इसके हाथ में पकड़ी टोकरी में से एक लड्डू बाहर गिर गया और लुढ़कता हुआ पहाड़ी के नीचे झाड़ियों में चला गया। किसान की बीवी भागकर वापस उतरी और लड्डू तलाश करने लगी। इसने बहुत तलाश किया, मगर वो लड्डू न जाने कहाँ चला गया। बहुत कोशिश की, मगर लड्डू ना मिला। तो इसके जहन में एक तरकीब आई। वो भागकर दोबारा पहाड़ी पर चढ़ी और इस जगह जहां पर लड्डू गिरा था वहां पहुंचकर इसने दूसरा लड्डू भी निकाला और इसे नीचे फेंकते हुए बोली कि अब ये लड्डू भी वहीं जाएगा जहां पहला गया था। मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगी और इसके साथ मुझे पहला लड्डू भी मिल जाएगा। इसने दूसरा लड्डू भी फेंक दिया और खुद इसके पीछे भागी, मगर वो भी न जाने कहां गिरकर गुम हो गया। अब दोनों लड्डू गुम हो चुके थे। काफी देर ढूंढने के बाद वो मायूस होकर आगे चल पड़ी, जहां पहाड़ी की दूसरी तरफ किसान 1 घंटे से घने दरख्त के नीचे बैठा इसका इंतजार कर रहा था। इसे देखते ही बोला, अब जल्दी से लड्डू निकालो, मुझे भूख लग रही है। और बीवी मुंह लटका कर बोली, लड्डू तो गए। किसान चीख उठा, कहाँ गए? इसने कहा कि एक लड्डू गिर गया था, दूसरा मैंने इसकी तलाश में इसके पीछे भेजा, मगर वो भी न जाने कहाँ खो गया। बीवी ने इसे सारी कहानी सुनाई तो किसान हैरान होकर बोला कि तुम ऐसी बेवकूफाना हरकतें इतनी अक्लमंदी से कैसे कर लेती हो? बीवी फिर बोली कि तुमने मुझे इस बारे में भी नहीं बताया था। किसान लाजवाब सा हो गया। फिर अचानक कुछ सोचकर पूछा कि मुझे उम्मीद है घर से निकलते वक्त दरवाजा बंद करके आई होगी। इसने कहा, नहीं, मैंने तो दरवाजा बंद नहीं किया था, क्योंकि तुमने मुझे तवज्जो ही नहीं दिलाई। इसकी बात सुनकर किसान परेशान हो गया और गुस्से से चीखा, इससे पहले कि हम मजीद आगे जाएं, तुम घर वापस जाओ, दरवाजा बंद करके इसे ताला लगा कर आओ, और हाँ, आते हुए खाने को भी कुछ ले आना। वो फौरन घर की तरफ भागी और इसने ऐसा ही किया जैसा इसके शोहर ने कहा था। खाने के लिए इसने एक बादामों की थैली उठाई और पीने के लिए पानी का एक मशकीजा। इसके बाद इसने घर के बैरूनी दरवाजे को ताला लगाया और वापस चल पड़ी। अभी 2 कदम ही उठे थे कि सोचा कि शोहर शायद फिर एतबार न करे कि ताला लगाए बगैर ही आ गई हो, इसलिए मुझे सबूत अपने साथ लेकर जाना चाहिए। ये सोचकर इसने जोर लगाया और पूरा दरवाजा ही उखाड़कर अपने सर पर रख लिया और वापस शोहर की तरफ चल पड़ी। जब वो वापस वहां पहुंची तो शोहर दरवाजा इसके सर पर देखकर हैरान रह गया और पूछा, ए अक्लमंद औरत, ये क्या है? बीवी चहक कर बोली कि तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, मगर देखो मैं कितनी अक्लमंद हूं। मुझे इल्म था कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं पूरा दरवाजा ही साथ ले आई हूं। अब खुद देख लो कि मैंने इसको ताला लगाया है या नहीं। किसान बोला, अरे तुम तो पूरा दरवाजा ही उखाड़ लाई, अब तो हर कोई आसानी से घर में घुस जाएगा। बीवी बोली, कोई कैसे घुस जाएगा? दरवाजा तो मेरे पास है, फिर कोई कैसे दाखिल हो सकता है? तो शोहर ने मजीद बहस से जान छुड़ाना ही मुनासिब समझा और कहा कि हाँ, वाकई तुम अहमक नहीं बल्कि बहुत समझदार और अक्लमंद हो। ये दरवाजा चूंकि तुम लेकर आई हो, इसलिए अब तुम ही इसे अपने सर पर उठाओगी। ये कहकर वो आगे चल पड़ा। बीवी ने वो दरवाजा दोबारा अपने सर पर उठा लिया और इसके साथ बादामों वाली थैली और पानी का मशकीजा भी उठाया हुआ था। चलते चलते वो दोनों जंगल में दाखिल हो गए। चोर तो अभी तक नहीं मिले और रात का अंधेरा भी छाने लगा था। जब तारीकी ज्यादा हो गई तो इन्होंने बरगद के घने दरख्त पर रात गुजारने का फैसला किया। अभी वो बरगद की घनी छांव में छुपकर बैठे ही थे कि चोर भी वहां पहुंच गए। वो बहुत थके हुए नजर आ रहे थे। वो आखिर बरगद के दरख्त के नीचे बैठ गए और बातें करने लगे
कि आज कैसे एक औरत को बेवकूफ बनाकर सोने के सिक्के हथिया लिए। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों चोर रात गुजारने के लिए आग जलाने की कोशिश करने लगे। किसान ने कुछ सोचकर दरख्त की शाखों पर लगे हुए फल तोड़े और ताक ताक कर इन दोनों के सरों पर निशाने लगाने लगा। वो दोनों इस इत्तेफाक से बुरी तरह से घबरा गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कहने लगे कि हवा या आंधी तो है नहीं, फिर ये फल कहां से और कैसे गिर रहे हैं। किसान की बीवी दरवाजा अपने कंधे पर उठाए उठाए काफी थक चुकी थी। इसने सोचा कि दरवाजे के साथ बंधा पानी का मशकीजा इसके वजन में इजाफा कर रहा है। इसने शोहर से कहा कि वजन ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं मशकीजे का पानी नीचे फेंक रही हूँ। ये कहते हुए इसने पानी नीचे उड़ेल दिया। जब वो पानी नीचे बैठे चोरों के सर पर बरसा तो एक चिल्ला उठा, अरे आंधी के बाद तो बारिश भी शुरू हो गई है। अगले ही लम्हे बीवी ने महसूस किया कि पानी नीचे उड़ेल देने के बावजूद दरवाजा तो अभी भी वैसे का वैसे ही वजनी है। तो फिर वो अपने शोहर से कहने लगी कि अब मैं बादाम भी नीचे फेंक रही हूँ, अब मैं इनका भी बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर इससे पहले कि शोहर कोई जवाब देता, इसने बादामों से भरी पूरी थैली नीचे उलट दी। जो ही वो सारे बादाम नीचे बैठे चोरों के सर पर बरसे तो वो चीख उठे, अरे अब तो ओले भी बरसना शुरू हो गए हैं, चलो कहीं और भाग चलें। पानी और बादाम फेंकने के बावजूद भी जब दरवाजे का वजन कम न हुआ तो वो समझ गई कि खुद दरवाजा ही बहुत वजनी है। दरवाजा इससे अब संभाला नहीं जा रहा था, वो इसके हाथ से फिसलने लगा था। वो शोहर से कहने लगी कि लो जी, अब दरवाजा भी चला। ये कहते हुए इसने दरवाजा छोड़ दिया, जो सीधा जाकर चोरों के सर के ऊपर गिरा। अरे मरे गए, वो एक साथ चिल्लाए और फिर ये देखे बगैर कि क्या चीज सर पर गिरी है, सर पर हाथ रखकर भागे और कहते जा रहे थे, पहले आंधी आई, फिर बारिश हुई, फिर ओले बरसे और अब तो आसमान ही सर पर आन पड़ा है। भागते हुए चोर अपना सारा सामान वहीं छोड़ गए। इनको भागता देखकर किसान और इसकी बीवी दरख्त से नीचे उतर आए। चोरों के सामान से इनको अपने सोने के सारे सिक्के वापस मिल गए। इन्होंने चोरों का सारा सामान उठाया और घर की तरफ वापस चल दिए। दोस्तों, कभी कभी बेवकूफ़ी भी इंसान के काम आ जाती है, जैसे इस बेवकूफ़ बीवी के हाथ से दरवाजा छूट गया। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।